We have already seen how the Britishers annexed and consolidated the region of Bengal, which consisted of the Bengal, Odisha, and the regions of Bihar. But today, our focus is going to be on Mysore, which was a South Indian kingdom. Now, how the Britishers came to Mysore, which were the Anglo-Mysore Wars. It means the wars between the British and the Mysore kingdom, right? And who were fighting those wars? What are the major details we need to study regarding this particular topic, which is the conquest of Mysore? Hi, I am Ajay and I welcome you all to Yuktira IS. So today our topic is from the modern Indian history, and we have discussed how we are doing these topics, and that is by doing using the flashcard technique, right? And you know the complete system if you are following this complete playlist and this course, right? So let us move forward and quickly jump into what we are going to study today. So for today, this is our topic, which is the conquest of Mysore, and it is part of a larger topic, which is the expansion and the consolidation of the British power in India, and Mysore is part of it. Now, in this particular topic that we see over here, we have to do these many, we can say, the flashcards. So these are it: Battle of Talikota, the Vodya dynasty, Dalwai, Mysore, Hyder Ali, and the Anglo-Mysore War. So let us quickly start and see. But before we move further, if you remember, after we finish our topic, what you have to do? You have to actively recall what I'm teaching you, or what you already know maybe. And after that, when you recall it properly, only after that you will be very sure that you remember the correct facts, you remember the correct data which is required for your exam. So let us start with it. Let us see the first thing. We are going to study about what? We are going to study up Mysore. Now, if we are studying about Mysore, what is this Battle of Talikota? Because we have to look a little bit, in the history, if we have to understand all the wars or how the conquest of Mysore was. ठीक है? तो let us look at a little bit of history of it. जब उस हिस्ट्री को समझेंगे ना, तो we have the Battle of Talikota. ठीक है? Now, ask yourself this question. We are studying the history. We are going to study the topic, the conquest of Mysore, right? And Battle of Talikota is the starting point that we are picking. Now, remember in which year this particular battle was fought. The Battle of Talikota. What was the particular year? What was the date? There are very few battles which which were very decisive in India, be it Plassey, be it the Battle of Buxar, the Battle of Panipat, and the Battle of Talikota. Such are the battles. They are decisive battle. Right? यहाँ तक clear है? Okay. तो Battle of Talikota was also a decisive battle. किसके बीच हुआ था? Ask yourself this. ठीक है? Because this is not a dictating session na. I have to ask you a few questions first. Okay, if you remember the year, it was 1565. So the Battle of Talikota was in 1565, and the date, you can easily remember the date because it was on 26th January. So this was the date of the Battle of Talikota. Now, between which two groups or parties this particular war was fought, this particular battle was fought. Okay, what are the two parties? If you can remember, there were two major parties. The number one was the Vijayanagara Empire, right? What about the second one? What were the second one? Second one were the Deccan Sultanates. Okay, don't worry, we are going to discuss each and everything. Nothing will be left. If you are doing this particular course, you will be done with your modern Indian history. That was a promise and it will be kept. Now, we have two entities in front of us. एक हमारे सामने है द विजयनगरा एम्पायर एंड सेकंड हमारे सामने है द डेक्कन सल्तनत. तो सबसे पहले इन्हीं को देख लेते हैं कि ये क्या है. ठीक है, लेट मी गेट रिड ऑफ द रिमेनिंग वन एंड लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग अ लिटिल बिट अबाउट द विजयनगरा एम्पायर. सो वी नो कि जो विजयनगरा एम्पायर है, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1336 एज अ हिंदू किंगडम, राइट?
And who were the people who established this particular kingdom? It was set up in the medieval times. Okay, Harihara I and Bukka Rai. Okay, so these people established the Vijayanagara Empire. So it was in 1336 and it went up to 1646. This is the timeline of the Vijayanagara Empire. तो प्लीज रिमेंबर दिस टाइमलाइन. दिस इज द फर्स्ट थिंग. बिल्कुल आराम से समझेंगे इसको. डोंट रश एनीवेयर. ठीक है, तो 1336 से वी हैव 1646 एज द टाइमलाइन ऑफ द विजयनगरा एम्पायर. और इसी के बीच में अब ये विजयनगरा एम्पायर कंप्लीटली फिनिश्ड, कंप्लीटली रिमूव्ड 1646 में हुआ था. लेकिन ये जो बैटल ऑफ तालिकोटा है ये उससे पहले हो गया था, समवेयर ओवर हेयर 1565. जब इसकी उसके बाद पावर जो है वो डिक्लाइन होनी शुरू होती है एंड कंप्लीटली वो फिनिश कब होता है? 1646 में. तो रिमेंबर द विजयनगरा एम्पायर 1336 to 1646. दैट इज द नंबर वन थिंग. सेकेंड, you must know on the map as well कि where is this particular Vijayanagara empire. So we can roughly say कि this shaded area was the Vijayanagara empire. तो it is covering the major states of केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश. तो वो कंप्लीट साउथ इंडिया का रीजन उसने कैप्चर कर रखा है. सेकेंड एंटिटी जो हमने अभी यहाँ पर देखी थी दैट वॉज द डेक्कन सल्तनत्स. ठीक है, क्योंकि सुल्तान इसको रूल करते थे तो हम इनको सल्तनत बोलते हैं. डेक्कन के एरिया में था तो ये डेक्कन सल्तनत्स होगा. लेकिन आपको ये बात याद रखनी है, दीज वर दी फाइव, देर वर 5 डेक्कन सल्तनत्स विच वर फाइटिंग गिविंग अ यूनाइटेड फ्रंट टू द विजयनगरा एम्पायर. इन दिस पर्टिकुलर बैटल ऑफ तालिकोटा, ठीक है, हु वॉज फ्रॉम द साइड ऑफ विजयनगरा एम्पायर? इट वॉज देयर डी फैक्टर रूलर राम राय. ठीक है, ही वॉज defeated and killed. तो राम राय from the Vijayanagara side. And we were on the Deccan Sultanate. तो there are 5 Deccan Sultanates, 5 Deccan Sultanates हैं. I'm giving you time to remember them कि ये 5 Deccan Sultanates कौन सी हैं, कहाँ पर हैं ये. ठीक है, okay. One thing is that they are in this particular area. ठीक है, ऐसे करके इसको if you can map not to scale. Okay. So can you see I've created 5 basic regions. ठीक है, अब ये जो सबसे पहले वाला रीजन है, ठीक है, दिस इज द रीजन ऑफ अहमदनगर. ओके, दिस इज द रीजन ऑफ अहमदनगर. दिस सेकेंड रीजन, दिस वॉज द रीजन ऑफ बीजापुर. ठीक है, द थर्ड रीजन विच इज लोकेटेड ओवर हेयर, दिस इज बीदर. Bidar. What is this fourth region? Can you tell me what is this fourth region? Also starts with B. It is Berar. And what is the last one which is marked by red? So I'll write it over here. This is Golconda. Okay. So please remember these. आगे फिर भी काम आने वाले हैं. बिकॉज वी आर गोइंग टू डू द मिडिवल इंडियन हिस्ट्री. ठीक है, वैसे भी काम आएंगे. तो ये वाला कौन सा रीजन हुआ? अहमदनगर का. सो दिस इज ए, दिस इज बीजापुर बी. ठीक है, यहां पर फिर 2 बी के हैं. दिस इज, वन इज बीदर एंड सेकेंड वन इज बेरार. ओके, एंड द थर्ड वन विच इज दिस पर्टिकुलर, इट इज जी, गोलकोंडा. Okay, so these are the 5 Deccan Sultanates. Now, on one side we have the Vijayanagara Empire, and on the other side we have the Deccan Sultanates. Now they are fighting the Battle of Talikota, after which the Vijayanagara Empire declined. Okay, so this is some basic information for the slide number 1. So this is the Battle of Talikota. Okay, so we can remember by this particular image. Let us see the recall points. ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें रिकॉल के लिए रिक्वायरमेंट है. अब हमें वो पॉइंट्स देखने ज़रूरी है बिकॉज हमको उतना ही याद रखना है. ठीक है, डेट मैंने याद कराई दी थी 26 जनवरी. आपको पता है इट इज़ द रिपब्लिक डे. उसको बैटल ऑफ तालिकोटा 26 जनवरी पे हम ऐसे वी क्लैप, हम ताली बजाते, तो उसको ऐसे करके कुछ ना कुछ याद करो. ठीक है, तो 26 जनवरी 1565 इज द डेट ऑफ द बैटल ऑफ तालिकोटा. विजयनगरा एम्पायर एंड द अलायंस ऑफ द डेक्कन सल्तनत. 5 डेक्कन सल्तनत हमको पता है. ठीक है,
ओके, दिस इज डन। डिफीट एंड डेथ ऑफ राम राय, ये हमने बात कर ली थी। ही इज फ्रॉम द विजयनगरा एम्पायर एंड आफ्टर हिज डिफीट द विजयनगरा एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। अब खुद सोच के देखो, हमने यहाँ पर इतना बड़ा विजयनगरा एम्पायर बनाया है, जब ये पूरा का पूरा एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन होगा तो यहाँ पर जो छोटी 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 एरियाज होंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होंगे, वो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देंगे एंड देर विल बी न्यू किंगडम्स विच विल बी कमिंग आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगरा एम्पायर। तो नाउ यू रिमेंबर कि why we are discussing the battle of Talikota, because after the decline of Talikota, after the decline of the Vijayanagara empire, what happened? I'll draw a map over here. ठीक है, after the decline, so there was this one particular area which emerged. ठीक है, स्टार्टिंग में ये वाला जो एरिया था ना, इट दे वर दी वसाल्स, दे वर दी वसाल्स ऑफ विजयनगरा एम्पायर। अब ये वसाल का क्या सिस्टम है उसको एक बार देख लेते हैं, सो दैट यू हैव क्लैरिटी ओवर दीज टर्म्स। नाउ एक सिस्टम होता है विच इज नोन एज द फ्यूडल वसाल सिस्टम। ठीक है, इसमें ये जो होता है, दिस इज द फ्यूडल लॉर्ड। ठीक है, एंड उसके सबॉर्डिनेट में, उसके सबॉर्डिनेट, वसाल इज द सबॉर्डिनेट ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड। तो ये हो गया हमारा यहां पर सबॉर्डिनेट। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये सबॉर्डिनेट सबसे पहले तो इसके प्रति लॉयल रहेगा, दे ही विल शो, और दे विल शो लॉयल्टी टुवर्ड्स देम। सेकंड, दे विल प्रोवाइड मिलिट्री सर्विस, ओके, आर्मी वगैरह प्रोवाइड करेंगे। बदले में वसाल्स को क्या मिलेगा, ये जो सबॉर्डिनेट अथॉरिटी, इसको क्या मिलेगा, दे हैव गॉट द लैंड एंड फ्रॉम दैट लैंड दे कैन गेट द रेवेन्यू। उस रेवेन्यू का कुछ शेयर उनको अपने फ्यूडल लॉर्ड को देना पड़ेगा। तो ये फ्यूडल सिस्टम तुम यहां पर देख रहे हो, दिस वॉज बिटवीन द बिगर विजयनगरा एम्पायर एंड बहुत सारे वसाल स्टेट्स के साथ ये ऐसा एम्पायर था। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिस्टम था। अब जब विजयनगरा एम्पायर ही नहीं रहेगा, फ्यूडल ही नहीं रहेगा, तो ये वसाल जो है, ये सबॉर्डिनेट्स हैं, ये क्या करेंगे, दे विल डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस। ओके, एंड दिस इज हाउ स्लो एंड स्टेडी द किंगडम ऑफ मैसूर कम्स अप। तो नाउ वी नो कि जो मैसूर का जो एरिया था, जो रीजन था, वहां पर जो रूलर्स थे, दे वर द वसाल्स ऑफ द विजयनगरा एम्पायर। एंड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ विजयनगरा एम्पायर, आफ्टर द बैटल ऑफ तालिकोटा, these vassals started to gain more and more power, so they were having more and more influence. ठीक है, and finally they got their independence, right? वैसे तो अगर हम देखें कि ये जो मैसूर का जो स्टेट है, द स्टेट ऑफ द रीजन ऑफ मैसूर, दिस वॉज बेसिकली एस्टेब्लिश्ड इन 1399। ठीक है, तो ये एज अ एक छोटा सा रीजन डेवलप हो गया, एंड ये रीजन अब वसाल है किसका, विजयनगरा एम्पायर का। एंड धीरे 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 चलते चलते 1612 में ये अपनी कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, क्योंकि तुम अगर ईयर को देखोगे तो उससे पहले तो बैटल ऑफ तालिकोटा हो चुका है, एंड फाइनली इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड 1612 दे डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस। अब उसके बाद यहां पर जो रूलर होता है, द हिंदू रूलर, ठीक है, वो आगे जाके रूल करता है। अब उससे पहले ये भी याद रख सकते हो कि मैसूर के अंदर देर वॉज दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी विच वॉज दी वोदेयर डायनेस्टी। ठीक है, सो दिस वॉज द हिंदू डायनेस्टी विच वॉज रूलिंग द रीजन ऑफ मैसूर। स्टोरी बिल्कुल क्लियर है, विजयनगरा एम्पायर है, डेक्कन सल्तनत्स हैं, दे आर फाइटिंग ईच अदर, बैटल ऑफ तालिकोटा होता है, विजयनगरा एम्पायर डिसइंटीग्रेट होता है, छोटे 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 रीजन्स जो हैं वो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं, मैसूर भी उसमें से एक होता है। नाउ मैसूर इज रूल्ड बाय द वुडियर डायनेस्टी, ठीक है, जो अपनी 1612 में अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर चुके हैं। तो ये हमारा हो गया बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर, एंड आई हैव गिवन मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वुडियर डायनेस्टी इन द लास्ट स्लाइड ओनली। ठीक है, कि इन्होंने 1612 में
कब? ये ईयर मोस्टली स्टूडेंट्स डोंट नो अबाउट दिस पर्टिकुलर ईयर, सो यू कैन रिमेंबर इट, दैट्स व्हाई आई गिव इट डायरेक्टली टू यू। 1612 में वुडियर डायनेस्टी अपनी कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करती है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी कि हु, अब इसमें जो भी रूलर्स होते हैं ना, ठीक है, स्टार्टिंग में तो दीज रूलर्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट आफ्टर सम टाइम, some time, these rulers were nothing but mere puppets in the hands of the strong people in the court. जो कोर्ट में जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं ना, उनके उसमें आ गए। फॉर एग्जाम्पल, देर वॉज कमांडर इन चीफ, देर वॉज द प्राइम मिनिस्टर वी कैन से, हु वॉज, एंड उसके पास ये जो रूलर होगा ये एज अ मेयर पपेट की तरह काम कर रहा है, बिकॉज ही इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। नाउ वी विल लुक एट दीज टू, CIC, the commander in chief of the army, and the prime minister during the period of what? वुडियर डायनेस्टी, ठीक है। माइसोर वाले एरिया में अच्छे से अपने आप को वो कर लेना, ठीक है, दिमाग में मैप बिल्कुल ऐसा क्लियर होना चाहिए। दिस वॉज द रीजन ऑफ माइसोर, ठीक है, दिस वॉज द रीजन ऑफ माइसोर। बाद में जाके अच्छा खासा एक्सपैंड हो गया था, ठीक है। अब इस मैप को अभी जो मैंने ड्रॉ करा है, यू हैव टू कीप दिस मैप इन योर माइंड। दिस इज द मैप ऑफ माइसोर। क्लियर? शुड वी मूव फॉरवर्ड? यस। तो व्हाट आर द पॉइंट्स इन द रिकॉल कार्ड ओवर हेयर? वुडियर डायनेस्टी जब भी तुम्हारे सामने आएगी, व्हाट आर यू गोइंग टू रिमेंबर फ्रॉम इट? दैट इट वॉज अ हिंदू किंगडम लाइक द विजयनगरा किंगडम, इट वॉज द हिंदू किंगडम। 1612 में अपनी इंडिपेंडेंस लेता है, बट वैसे बेसिकली जो पूरा का पूरा मैसूर है वो 1399 में ही एस्टेब्लिश हो गया था। वी आर टॉकिंग अबाउट द वुडियर डायनेस्टी। इसमें एक रूलर होते हैं चिक्का कृष्णराज वुडियर सेकंड, ठीक है, उनका ये पीरियड होता है। नाउ कैन यू सी, ही इज रिटन एज अ पपेट रूलर। तो दिस पर्टिकुलर रूलर, he started to become a puppet in the hands of the strong people in the court, like Nanraj and Devraj. So these were the two main people in the court of the Chikka Krishnaraj Vudiyar II. You just have to remember a little bit of the timeline. ठीक है, कि 1750s के टाइम पीरियड में, ओके, 1750s के टाइम पीरियड में, बिफोर द बैटल ऑफ प्लासी, इफ यू रिमेंबर द बैटल ऑफ प्लासी, these people in Mysore, Nanraj, who was a सर्वाधिकारी, ठीक है, ही वॉज दिस सर्वाधिकारी, एंड देवराज हु वॉज अ दलवाई, ठीक है। ये दोनों टर्म्स आपको याद रखने हैं। ये टर्म्स आपको क्यों याद रखने हैं? बिकॉज यूपीएससी आज दीज टर्म्स, ठीक है, कौन कौन से? सर्वाधिकारी एंड द दलवाई, ठीक है। ननराज वॉज द सर्वाधिकारी एंड देवराज वॉज द दलवाई। दे वर इन द कोर्ट्स ऑफ चिक्का कृष्णराज वुडियर एंड दे बेसिकली मेड हिम एज द पपेट रूलर। गॉट इट? नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भाई ये जो दो टर्म्स अभी हमने बोले हैं, दलवाई और सर्वाधिकारी, ये बेसिकली हैं कौन? हु आर दीज पीपल? बिकॉज वी डिस्कस्ड टू थिंग्स, हमने दो चीज़ों को अभी स्टडी करा था। वो था कमांडर इन चीफ एंड सेकेंड वन वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मैसूर का जो पूरा का पूरा रीजन था। तो इसमें से कौन सा है वो हमें, इफ़ यू रिमेंबर इट देन प्लीज अटैच वन टू द अदर वन, ठीक है। नहीं है तो हम उसको कर लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल, दी दलवाई इज द कमांडर इन चीफ एंड द सर्वाधिकारी, सर्वाधिकारी, ठीक है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, ठीक है, जो रूल करेगा, ही इज द प्राइम मिनिस्टर। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज टू, दलवाई एंड सर्वाधिकारी। दे वर ड्यूरिंग द वुडियर डायनेस्टी, और वुडियर डायनेस्टी कहां पर थी? इट वॉज इन मैसूर। गॉट इट? So we have a complete historical background of the conquest of Mysore in our mind basically. Now before we move further up, we have to discuss one more map so that you have a complete understanding of how Mysore is going to be, you know, there will be conquest of the Mysore, how it is going to be, ठीक है। तो वो एक छोटा सा मैप उसको है, उसको समझ लेते हैं कि what this map is all about, और बड़े ध्यान से समझना इस पर्टिकुलर मैप को। एवरीथिंग विल बी क्लियर एंड यू वोंट हैव टू गो इनटू मच स्टोरी अबाउट द थिंग्स कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, एंड यू विल बी डायरेक्टली ओके विद इट, ठीक है। ये वाला रीजन हम देख ही चुके। दिस वॉज द रीजन ऑफ मैसूर, राइट? दिस इज द रीजन ऑफ मैसूर। अब इस मैसूर के जस्ट यहां पर ये बिल्कुल छोटा सा जो पार्ट है, ठीक है, जस्ट अ लिटिल बिट इफ यू कैन
see over here. This is the region of Cochin. Sorry, this is the region of the Cochin state. ठीक है, एक बिल्कुल छोटा सा एक एरिया है. एंड बिलो दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, जो केरला का ये जो एरिया है, ठीक है, टुडेज केरला, दिस वॉज द स्टेट ऑफ त्रावणकोर. दिस वॉज द स्टेट ऑफ त्रावणकोर. तो तीन चीजें देख ली. कौन कौन सी? मैसूर देख लिया, कोचिन स्टेट देख लिया, त्रावणकोर देख लिया. आगे जाके स्टोरी में प्रॉब्लम नहीं आएगी. दिस इज व्हाट आई नीड टू टेल यू. अब ये जो जितना भी ये थोड़ा सा ये ऐसे एरिया जो है ना, अब ये वाला, ठीक है, अब ये रिमेनिंग एरिया को देखो. दिस रिमेनिंग एरिया वॉज द निजाम ऑफ, अंडर द निजाम ऑफ हैदराबाद. ठीक है, ही वॉज द निजाम ऑफ हैदराबाद. ऑफ कोर्स दिस हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद केम आउट ऑफ द मुगल एम्पायर. वहाँ से वो उसने इसी पीरियड में उसको इंडिपेंडेंस मिली थी. तो ये निज़ाम का एरिया. एंड अबव देम, ठीक है, अबव देम अप टू दी, हम उसको पूरे के पूरे बेसिकली नॉर्थ इंडिया की तरफ हम उसको ले सकते हैं वेरी इजीली. दिस इज द मराठा किंगडम, ठीक है, और द मराठा एम्पायर. तो नाउ आई हैव गिवन यू द नेबरिंग एरियाज ऑफ द मैसूर किंगडम. ठीक है, अब हमारे पास नेबरिंग एरियाज है. अब इसमें आई विल गिव यू टू मोर एरियाज दैट यू हैव टू रिमेंबर. देखो, इस एरिया में who was there in this particular area? This area was the area of Bengal. ठीक है, I hope this red color is visible. This area is the area of Bengal. ठीक है, एंड वो नीचे की तरफ एक्सपेंड कर रहा था धीरे धीरे टूवर्ड्स ओडिशा एंड एवरीथिंग. ठीक है, ये वाली चीज है. अब इस निजाम वाले इस एरिया को देखो. दिस पर्टिकुलर कोस्टल बेल्ट, इफ यू कैन सी, महानदी कृष्णा रिवर के बीच में जो ये कोस्टल बेल्ट जो मैंने अभी शो करी है, दिस इज दी, आई यूज द पेन ओनली सो दैट इट स्टिक्स टू योर माइंड. दिस पर्टिकुलर एरिया विच इज अंडर द निजाम ओनली. ठीक है, इट इज अंडर द निजाम ओनली. दीज आर दी, कौन सा है ये, रुके, स्पेलिंग, नदन सिरकार्स. ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना है. इफ यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर द बंगाल चैप्टर, वहां पर हमने एक पर्टिकुलर चीज की बात करी थी कि जो पूरा का पूरा प्रोविंस होता था वो किसी डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड होता था. व्हाट वर द डिस्ट्रिक्ट्स कॉल्ड भाई? व्हाट वर द डिस्ट्रिक्ट्स कॉल्ड? दे वर नोन एज सरकार्स. एंड बाद में जाके कैसे वो डिस्ट्रिक्ट्स परगना में अंदर, फिर उसके बाद मौजा में डिवाइड होते हैं जो रेवेन्यू यूनिट्स थी, तो वो सरकार्स थी. तो सरकार्स वर बेसिकली द डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड. एंड ब्रिटिश की एक्सेंट में अगर इस चीज को देखेंगे तो इट विल बिकम सिरकार्स. तो नॉर्दर्न सिरकार्स ये वो कोस्टल टेरिटरी है इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा. ठीक है, जो क्या है, नॉर्दर्न सिरकार्स और नॉर्दर्न सरकार्स. सरकार्स आर बेसिकली द डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है, तो ये वाला एरिया तुम याद रखोगे. और ये जो नीचे वाला जो कोस्टल बेल्ट बच जाएगी, ठीक है, दिस वॉज द एरिया ऑफ द कर्नाटक. कर्नाटक ये हमारे बाद के चैप्टर्स में यूज आएगी, बट आई हैव गिवन यू द हिंट वेयर इट इज लोकेटेड. ठीक है, अब प्लीज लुक एट दिस पर्टिकुलर मैप एंड यू विल हैव एवरीथिंग क्लियर. उसके बाद ऐसे विल क्विकली गो थ्रू द स्टोरी एंड इट विल बी वेरी मच ईजी फॉर यू टू रिमेंबर एवरीथिंग दैट वी आर स्टडिंग. ठीक है, तो अपने पास मैसूर हो गया, कोचिंग स्टेट हो गया, त्रावणकोर याद रह जाएगा, निज़ाम की बाउंड्रीज याद रह जाएंगी, निज़ाम के पास ही नदन सिरकार्स है, ये बात याद रखना. एंड ऊपर जो मैसूर के और निज़ाम के जो ऊपर वाला जो एरिया है दैट इज द मराठा एम्पायर. ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट मैसूर अंडर हैदर अली. नाउ आई एम गेटिंग रेड ऑफ व्हाट आई हैव ड्रॉन ओवर हेयर. ठीक है, आई होप यू हैव हैड अ गुड लुक. अगर नहीं है यू कैन गो बैक एंड लुक एट इट. ठीक है, अब हम इस चीज को देखेंगे नेक्स्ट वाले को, मैसूर अंडर हैदर अली. क्योंकि अभी तक तो जो हमने देखा था, वी वर लुकिंग एट कि कैसे द सर्वाधिकारी एंड दलवाई हैड मेड द रूलर बेसिकली अ पपेट इन देयर हैंड्स. ठीक है, एंड जैसे देवराज और ननराज ने रूलर को ऐसे पपेट बनाया था, वैसे ही बेस्ड ऑन दो सेम लाइंस देयर वाज समवन एल्स हु डिड द सेम थिंग एंड दैट वाज हैदर अली. ठीक है,
and that was during the period of 1761. So you have to remember this particular period, 1761, because at this particular moment, Hyder Ali, took control over the Mysore. He became a dominant power, right? रूलर तो रूलर है, ही इज अ पपेट देयर, ठीक है, उनका कुछ नहीं चल रहा है वहां पर, बट हैदर अली बिकम्स द डी फैक्टो अथॉरिटी, ठीक है. नाउ यू हैव टू रिमेंबर, नाउ फ्रॉम 1761 आई विल गिव यू 2 years ओवर हेयर टिल 1799, ठीक है. अब ये 2 year मैंने आपको दे दिया, एंड व्हाई आई हैव गिवन यू दीज 2 years, आई विल टेल यू व्हाई. 1761 में हैदर अली मेजरली डोमिनेट्स द मैसूर किंगडम, एंड 1799 तक, जब तक हैदर अली के सन टीपू सुल्तान ब्रिटिश से कंप्लीटली उनके हार नहीं जाते, उनकी डेथ नहीं हो जाती, तब तक, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक, मैसूर वॉज मोस्टली कॉल्ड अ सल्तनत, ठीक है, बिकॉज इट वॉज अंडर द मुस्लिम रूल, इट वॉज अंडर द मुस्लिम रूल. परफेक्ट. मैसूर एक हिंदू किंगडम है, वुडिया डायनेस्टी के अंदर में आती है. कुछ किंग्स थे, वो पपेट बन चुके थे, ठीक है, अंडर द सर्वाधिकार हिंदुलवाई. धीरे धीरे हैदर अली का राइज होता है 1761 से लेकर 1799 तक, जब ब्रिटिशर्स वापस उसको वुडिया डायनेस्टी को फुल कंट्रोल नहीं दे देते, उस पीरियड तक दिस वॉज मेजरली रनिंग एज अ सल्तनत, and these were the two major sultans. Now these two major sultans will be fighting the East India Company. Of course we are talking about the conquest of Mysore. They are going to lose the wars and EIC यानी East India Company is going to take over them. ठीक है. कार्ड पे आ जाते हैं. Mysore under Hyder Ali. So now what you know about Mysore under Hyder Ali, that he was the de facto ruler in 1761. He was ruling Mysore, number one, ठीक है. Second, he helped contain the swift Marathas, ठीक है. How Hyder Ali was able to contain? Now you remember the map, because जो नॉर्दर्न बाउंड्री है मैसूर की, वो किसके साथ टच हो रही है? वो मराठास के साथ टच हो रही है. मराठास भी एक्सपैंड कर रहे थे, ठीक है. दो दे वर डिफीटेड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, ठीक है, बट दे वर एक्सपेंडिंग स्टिल, राइट. तो मराठास को कंट्रोल करने के लिए व्हाट हैदर अली वाज डूइंग, ही वाज टेकिंग हेल्प फ्रॉम द फ्रेंच यूरोपियन पावर. फ्रेंच से वो हेल्प ले रहे थे, क्योंकि उनकी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग वाज बीइंग यूटिलाइज्ड. गॉट इट. एंड उन्होंने एक आर्म्स फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी. किसने? हैदर अली ने एक आर्म्स फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी एट दिंदुगल, ठीक है, कर्नाटका वाले रीजन में उन्होंने, सॉरी तमिलनाडु वाले रीजन में इस चीज को एस्टेब्लिश करा. फाइन. सो इट इज नाउ इन तमिलनाडु. तो सपोज दिस इज द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, here it is located, this is Dindugal. Okay. Western methods of training were utilized to train the Mysore army under Hyder Ali, and Hyder Ali also checked the troublesome polygars of South India. ठीक है, he checked the polygars. Now what do we mean by he checked the polygars? Now let us see what are these. ये आगे भाई हमारे पास polygars, ठीक है. Who are these polygars? So consider these polygars as landlords. So why they are such a so troublesome? Because these landlords were providing what? Military service to the ruler, number one thing. तो जो भी मेन रूलर होता था, इवन अंडर ड्यूरिंग द विजयनगरा पीरियड, तब से they were the landlords, they were the local chiefs. They are providing the military service, number one. They are collecting the revenue. They are maintaining justice, and they are maintaining order and peace in the region. So can you see, they are functioning as a ruler basically. So these polygars of South India, who were they? They were local landlords who provided military service and collected revenue. They administered the justice and maintained peace and order in their area. ऐसे बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स थे. These landlords were known as polygars, ठीक है. और ये पलायम्स, ठीक है, पलायम्स यानी ग्रुप ऑफ विलेजेस पर ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, मेंटेन करते थे, सारी सारी चीजें करते थे.
ना अब जो पोलिगर्स है ना, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगरा एम्पायर, दीज लैंडलॉर्ड्स, इनकी जो स्ट्रेंथ थी और जो इनकी पावर थी, दैट स्टार्टेड टू राइज। ठीक है। अब माइसोर के अंदर जो भी सुल्तान होगा, जो भी किंग होगा, तो नीचे से पोलिगर्स राइज करने लग रहे हैं, तो उनको इसको क्या करना पड़ेगा, दे विल हैव टू बी कंट्रोल्ड। ठीक है। एंड आई टेल यू वन मोर थिंग कि व्हेन दीज पोलिगर्स, ठीक है, आफ्टर द एंड ऑफ द माइसोर, 1799 में माइसोर एंड हो गया था, उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए थे। देवर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विच वॉज इन द माइसोर। वो पोलिगर्स पे और ज्यादा देवर प्रेशराइजिंग देम एंड डोमिनेटिंग देम, एंड दैट इज व्हेन देयर इज polygar revolt that you will study about from 1799 to 1805. So this is something where it is coming from. Now you have some idea ना कि कैसे वो पोलिगर्स राइज कर रहे थे। पहले हैदर अली ने उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी बिकॉज दे वर राइजिंग इन देयर पावर, एंड सुल्तान को अपनी पावर प्रोटेक्ट करनी है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर को अपने पास ले लिया, these polygars were subjugated more, even more, and that is when these polygars rise for the revolt. Of course they were crushed between the period of 1799 to 1805. I think you have got the gist of everything that I'm going to tell you, and now you have some clarity, right? Clarity aa rahi hai is cheez ki. Very good. So Hyder Ali checked the troublesome polygars of South India, and Hyder Ali was also fighting the Marathas from 1764 to 1776. इस पर्टिकुलर पीरियड में द मराठास वर वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड। ऑफ कोर्स माधवराव की डेथ के बाद वो थोड़े से वीक होना शुरू हो गए थे। दैट वी विल स्टडी इन दी मराठा चैप्टर, बट अभी के लिए these are those 5 points that you have to remember or that you have to recall when we talk about Mysore under Hyder Ali. ठीक है, तो सारे के सारे हो गए। 1761 हो गया, पोलिगर के राइस को उन्होंने कंट्रोल करा, मराठास को कंट्रोल करा, दिंदीगुल की फैक्ट्री को याद रखना, राइट। एंड हैदर अली वर्सेस मराठास ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड। पोलिगर्स के बारे में वी हैव टॉक्ड इनफ इन द प्रीवियस स्लाइड ओनली। ना अब सोच के देखो इसके क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, पॉलीगर्स के बारे में अभी तक मैंने जितनी भी बातें आपको बताई हैं उनके बारे में सोच के देखो कि व्हाट आर, यू कैन पोज इफ यू वांट टू, बट आई हैव टू मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब वी आर गोइंग टू सी द रिकॉल पॉइंट्स रिगार्डिंग द पॉलीगर्स। सो इफ यू हैव पॉलीगर्स इन योर माइंड, तो व्हाट विल बी योर रिकॉल? व्हाट विल बी योर रिकॉल? नंबर वन, दे वर ऑल्सो नोन एज पलायाकरस। ठीक है, एक तो हम ये वर्ड याद रखेंगे, Playakars. They are feudal lords in southern India. Number one, they were primarily under the Vijayanagara Empire, VE Vijayanagara Empire. They provided military and administrative control. जिस टेरिटरी को प्रोवाइड करते थे उस टेरिटरी को क्या बोला जाता था? I'll highlight in other pen, which is Palayam. Palayam is a group of villages. ये क्या है भाई? This is group of villages. Got it? These are the Palayams. Next, what is next? They were responsible for maintaining the forts, policing their area, collecting taxes, and commanding the troops. So, can you see they hold significant power? Their power was challenged and suppressed by the East India Company. Hyder Ali controlled them कि okay, maintain your area, remain in your area, not beyond that. ठीक है, but East India Company was more disciplined. They wanted more control over these areas, so that's why. And there was Polygar revolt from 1799 to 1805. तो polygars are related with the Mysore and the Vijayanagara Empire, और वहीं से वो revolt निकल कर आता है। तो you don't have to ratify the polygar revolt state। तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि कैसे Mysore will be taken by ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड उनका फिर डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ आ जाएगा, बाउंड्रीज किसके साथ आ जाएंगी? विद दीज पॉलीगर्स। इजी इनफ। दीज आर दी अगेन 5 points दैट यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग दी पॉलीगर स्टिमुलस। याद है ना, इसको क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं, जो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है एक प्रकार से। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज दिस। व्हाट इज दिस? ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रीटी विद द निजाम। नाउ
अब सोचने वाली तो बात है, बिकॉज देर विल बी एंग्लो माइसोर वॉर्स। वेयर इज दिस एंग्लो ब्रिटिश कमिंग इन टू द पिक्चर, बिकॉज अभी तक तो हमने उनको ज्यादा डिस्कस करा नहीं है। नाउ इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट मैप, आई गिव यू जस्ट अ बेसिक ग्लिम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मैप। इस एरिया में बंगाल था, राइट? बंगाल, इस एरिया के अंदर was the territory of Madras, which was again under the Britishers. Now इस टेरिटरी को, इस पर्टिकुलर टेरिटरी के साथ कनेक्ट करने के लिए ये कोस्टल रीजन की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है? दिस, कैन यू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस कोस्टल रीजन? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कोस्टल रीजन? इट वाज एनसी। सोच सकते हो क्या था? हाँ, गुड। आई नो यू हैव थॉट इन योर माइंड, इट इज नॉर्दर्न सिरकार्स और द नॉर्दर्न सरकार्स। यहाँ पर कौन सा स्टेट है? व्हाट इज दिस पर्टिकुलर स्टेट? दिस इज द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रीटी साइन करती है किसके साथ? निज़ाम के साथ। दे बेसिकली वॉन्ट व्हाट? द रीजन ऑफ नॉर्दर्न सिरकार्स। ये ट्रीटी कब होती है? यू हैव टू रिमेंबर दिस ट्रीटी इज इन 1766, ठीक है? जो चीज स्किप करने की, आई डेलिबरेटली स्किप इट, ठीक है? एंड जो चीज़ एग्जाम के लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टोरी हो चाहे वो फैक्ट्स हो, it is going to be delivered to you. Don't worry about it. So if I'm skipping something, it will be for a reason. ठीक है? Trust me with that. तो अब EIC की ट्रीटी किसके साथ है? It is the treaty with the Nizam, and what they are getting? They are getting Northern Sirkars. Why EIC is having a treaty with Nizam? Because एक तरफ हमारे पास मराठास हैं, एक तरफ हमारे पास मैसूर हैं, एंड एक तरफ हमारे पास निज़ाम है। एंड दीज थ्री आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर। तो बेसिकली मराठास और निज़ाम की फाइट किसके साथ है? इट इज़ द फाइट विद द मैसूर, ठीक है? अब निज़ाम को, ठीक है, मैसूर के अंदर कौन है? हु इज इन मैसूर? हैदर अली है। उसकी पावर इंक्रीज हो रही है, वो निज़ाम पर कभी भी अटैक कर सकता है और वो कर भी रहे हैं। तो व्हाट डिड निज़ाम? निज़ाम को क्या चाहिए? ही नीड्स प्रोटेक्शन, एंड दैट प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। इनको मौका चाहिए टू गेट इन टू द वॉर विद समवन, and they get northern Sirkar regions against the protection from Hyder Ali, and this is the treaty of 1766. Of course there was a long form चीज़ें हुई थी, treaty बाकी सारी चीज़ें, but you can remember only these 2 points regarding this particular stimulus to connect how East India Company got into the affairs. अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे, which is the first Anglo-Mysore war. This is our main point, and for this I'm going to directly go to the recall method so that you can remember it, and I don't want you to get anywhere near confusion regarding this particular. First Anglo means British, Mysore war 1766 तक तो तुम्हें चीज़ों का मोस्टली अब पता चल गया कि हाउ निज़ाम हैज साइडेड विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, हाउ मैसूर वांट्स टू ग्रो अंडर हैदर अली, how there is a constant fighting between the Marathas and the Mysore, ठीक है? ये सिचुएशन चल रही है पूरे के पूरे सदर्न इंडिया की, राइट? तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर द ईयर विच इज रिलेटेड विद इट, विच इज द 1767 to 69. So this was the year of the first Anglo-Mysore war, ठीक है? Remember this particular year, ठीक है? This is the first point. Second point, now sometimes Marathas are siding with Mysore, sometimes the Nizam is siding with the Mysore and against the EIC, sometimes the EIC is Marathas and Nizam against the Mysore. तो ये सब जो पूरी की पूरी जो कंफ्यूजन चल रही है कि भाई मैं आज तेरे साथ हूँ, कल मैंने तुझ पर अटैक कर दिया, उस पर कर दिया, सो ऑल वी डोंट नीड टू नो अबाउट दिस कंफ्यूजन, एंड देयर इज वन सिंगल वर्ड regarding this, couple of words, which is changing alliances. So there are changing alliances between all these major powers, Mysore, Marathas, Nizam, East India Company, ठीक है? और इस अलायंस के चेंज होते होते देर इज सो मच कंफ्यूजन एंड फाइटिंग एंड एवरीथिंग विच इज गोइंग ऑन, ठीक है? तो जो बेसिकली मैसूर है, ठीक है, उसका वॉर शुरू हो जाता है विद ईस्ट इंडिया कंपनी बिकॉज ऑफ द अलायंसेस, ठीक है? सिर्फ इतना पता होना चाहिए,
जस्ट डोंट गेट इनटू एनीथिंग एल्स, ठीक है, नहीं तो वो काफी बड़ा हो जाएगा। नाउ ही अटैक्स मद्रास, ठीक है, उस एरिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या लोकेशन है, इट इज मद्रास, तो वो मद्रास पर अटैक करते हैं अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। एंड फाइनली देर इज अ ट्रीटी ऑफ मद्रास विच इज साइंड। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की जो ट्रीटी है, पहले तो ये 1767 टू 69 में हुआ, मद्रास पर अटैक होता है इसलिए ट्रीटी ऑफ मद्रास ही होगी, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769। म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन, जो भी हमने टेरिटरीज गेन करी होंगी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, अब हम वो टेरिटरीज एक दूसरे को वापस कर देंगे, वी विल रिटर्न दोज टेरिटरीज, दिस इज नोन एज म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन। म्यूचुअल, आप भी और मैं भी, रेस्टिट्यूशन रिटर्न कर देंगे, सो वी आर गोइंग टू रिटर्न आवर टेरिटरीज, तो सेम पोजिशन आ जाएगी, गुड। हेल्प फ्रॉम द इंग्लिश व्हेन नीडेड, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। When the Britishers or the East India Company signed the Treaty of Madras because they lost this particular war, ठीक है, the Anglo lost this particular war, Hyder Ali was standing on the gates of Madras, ठीक है, कैप्चरिंग मद्रास। तो अब ये पूरा का पूरा सिनेरियो है एंड म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन साइन होता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इंग्लिश और द ईस्ट इंडिया कंपनी विल हेल्प द मैसूर व्हेन दे नीड द हेल्प अगेंस्ट मराठाज, अगेंस्ट निजाम, चाहे कोई भी हो, ठीक है। सो दिस इज द ट्रीटी ऑफ मद्रास, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट दैट आई गेव यू, बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, चेंजिंग अलायंसेस वगैरह इनकी वजह से शुरू होता है, देर इज दी मद्रास पर अटैक होता है एंड ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है 1769 में, एंड म्यूचुअल हेल्प एंड म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन एंड हेल्प व्हेन नीडेड फ्रॉम द इंग्लिश। दिस इज द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। चलिए हम आगे, सो शुड वी मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर पे। नाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, कोई किसी पे छोटा मोटा अटैक करने लग रहा है, दे आर गेनिंग द टेरिटरीज, सो थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड थिंग्स आर गोइंग ऑन फ्रॉम 1767 से 1769 तक। सो दिस वॉज द पीरियड ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर पीरियड इज गोइंग ऑन, what happens after it we will study in the second Anglo-Mysore war. So we'll directly look at some of the points and we'll come back again. Number one thing that this war was in 1780 to 84, ठीक है। तो हमने जो ये अपना अभी यहाँ पर ये देखा, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 1780 to 1784, इस बीच वाले पीरियड में दे ऑल आर डूइंग एक्सपेंडिंग इन एवरीथिंग, दे आर फाइटिंग अ लिटिल बिट। एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कब होता है, इट इज बिटवीन 1780 to 84। वाई आई एम रिपीटिंग दिस, सो दैट यू कैन प्लीज लर्न दैम, वाई आई एम सेग्रीगेटिंग दिस, वहां से उठाकर यहाँ क्यों लिखा है, सो दैट यू कैन सी बोथ द ईयर्स टुगेदर। नाउ व्हाट हैपेंड इज देयर वाज अ ब्रीच ऑफ द ट्रीटी ऑफ मद्रास, आई टोल्ड यू टू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर पॉइंट, कि ट्रीटी ऑफ मद्रास जो थी उसमें क्या बोला गया था, उसमें यह बोला गया था द ब्रिटिश विल हेल्प द मैसूर व्हेन नीडेड, एंड व्हेन मराठास अटैक्ड मैसूर द ब्रिटिश डिड नॉट कम फॉर हेल्प। सो बेसिकली दे वायलेटेड द ट्रीटी, नंबर वन, दिस इज द फर्स्ट थिंग, ओके। नेक्स्ट थिंग, EIC वॉज थिंकिंग, उस एरिया में फ्रेंच भी हैं, ठीक है। अब हैदर अली को यह लगता था कि जो फ्रेंच के आर्म्स एंड एम्यूनिशन है ना वो ज्यादा बेटर है, ठीक है, एंड ही वॉन्ट्स टू इम्पोर्ट दोज आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। उसके लिए वो क्या करते हैं, वो माहे के पोर्ट को यूज करने देते हैं फॉर द फ्रेंच टू ब्रिंग द आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स को लगता है यार ये मेरे यूरोपियन पावर सेकंड का दूसरे का साथ ले रहे हैं, ठीक है, ये मेरे लिए एज अ क्या है, इट इज अ डेंजर फॉर मी, ठीक है। द ब्रिटिश आर थिंकिंग दिस, सो EIC ट्राइड कैप्चरिंग द माहे एरिया on the Malabar coast, and Mahe was a French possession. If Mahe is a French possession, may I ask you, why is Hyder Ali so concerned? Because it was under the protection of Hyder Ali. The area of Mahe was under the protection of Hyder Ali. Got it? But it was a French possession. It was a French possession, number one thing. फ्रेंच क्यों नहीं आ रहे अब बीच में, उनका अमेरिका में अपना वो सिस्टम चलने लग रहा है, ठीक है, वहां पर अपने वॉर्स चलने लग रहे हैं, तो दे आर मोर बिजी ओवर देयर, एंड यहाँ पर
हैदर अली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है टू प्रोटेक्ट माहे, बट EIC ट्राइड कैप्चरिंग माहे. दिस इज द सेकेंड थिंग. सो कैन यू सी दीज आर द कोजेज जिसकी वजह से सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ. सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर सबसे पहला मराठास के अगेंस्ट में ट्रीटी ऑफ मद्रास को उन्होंने ब्रेक डाउन करा 1771 में. 69 में ट्रीटी साइन हुई थी. 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी. 71 में उन्होंने उस ट्रीटी को ब्रेक डाउन करा. एक उन्होंने गलती कर दी. सेकंड, दे ट्राइड कैप्चरिंग माहे. ठीक है. एंड फिर उसके बाद शुरू होता है द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर फ्रॉम 1780 टू 84. अब यहां पर ना एक चीज देखने वाली है कि हैदर अली वॉज फाइटिंग दिस पर्टिकुलर वॉर. कौन फाइट कर रहा है? हैदर अली. बट ही गोट सिक, ही डाइड इन बिटवीन. ठीक है. एंड दिस पर्टिकुलर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉज टेकन केयर बाय हिज सन टीपू सुल्तान. ही कैरीज ऑन द वॉर फॉर वन मोर ईयर. ठीक है. एंड फाइनली द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इज साइंड इन 1784. इजी इनफ. पहला कब था एंग्लो मैसूर वॉर? कब था? वेरी गुड. सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, उसमें दोनों फादर एंड द सन. फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर वॉज टेकन केयर ऑफ बाय द फादर. सेकेंड हाफ ऑफ द वॉर इज टेकन केयर ऑफ बाय द टिपू सुल्तान बिकॉज हिज फादर डाइड. ठीक है. एंटी ब्रिटिश अलायंस बनाया जाता है. मराठास को साथ लाने की कोशिश की जाती है, निज़ाम को साथ लाने की कोशिश की जाती है. एंड दे आर फाइटिंग. देर आर डिफरेंट डिफरेंट कमांडर्स, द ब्रिटिश कमांडर्स. बट फाइनली एट पोर्टो नोवो, ठीक है, उनकी डिफीट हो जाती है. इट शुड बी 1781. ठीक है. पोर्टो नोवो में उनकी डिफीट हो जाती है. देन उनकी डेथ हो जाती है हैदर अली की. एंड देन कम्स टीपू सुल्तान. सो बेसिकली कैन यू सी इन दिस लास्ट लाइन द कंप्लीट स्टोरी इज गिवन in one single line with few words only. And this is what you have to do with the stories. अगर स्टोरी फिर भी एक उसका हिंट याद भी रखना है तो तुम क्या करोगे उस पर्टिकुलर चीज के लिए? यू जस्ट हैव टू कीप फ्यू वर्ड्स, रिमेंबर इट एज अ स्टोरी. देर वॉज अ एंटी ब्रिटिश अलायंस विच वॉज फॉर्म्ड. ठीक है. बेली एंड कूट, दे वर डिफरेंट डिफरेंट मिलिट्री कमांडर्स. एंड फाइनली एट पोर्टो नोवो इन 1781, ठीक है, मैसूर को थोड़ी सी डिफीट करनी पड़ी. आफ्टर दैट हैदर अली डाइज एंड हु कम्स इनटू पिक्चर? द टीपू सुल्तान. ही कम्स इनटू पिक्चर एंड फाइनली द ट्रीटी इज साइंड एट मैंगलोर. तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर फर्स्ट वाली क्या थी? इट वॉज द ट्रीटी ऑफ मद्रास. कब थी? 1769. सेकेंड कौन सी है? द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784. दोनों होगी, दो वॉर्स हो गए, दो ट्रीटीज हो गई. गॉट इट? चीजें नॉर्मली चलने लग रही हैं. एंड देयर कम्स द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर. नाउ प्लीज रिमेंबर what you have to remember that Hyder Ali is out of the picture now. ठीक है. And now Tipu Sultan has taken care of Mysore. ठीक है. From 1782 onwards he is taking care of Mysore. He signed the Treaty of Mangalore, not Hyder Ali. Hyder Ali was in the second Anglo-Mysore war but for the first half period only. ये याद रहेगा. ठीक है. अब हम आते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर पे. ठीक है. फर्स्ट वाला कब था? 67 टू 69. ट्रीटी, विच वॉज द ट्रीटी? मद्रास. रिवीजन हो रही है साथ साथ? हाँ, हो रही है. गुड. सेकेंड 1780 टू 84. व्हाट वॉज द ट्रीटी विच वॉज साइंड? गुड. इट इज मैंगलोर. ठीक है. नाउ वी कम टू द थर्ड वन विच इज द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर. अब तुम कहोगे सर आपने एक स्टार्टिंग में एक मैप बताया था, मैसूर के नीचे की साइड कोचिन स्टेट था, उसके नीचे केरला वाले एरिया में त्रवणकोर स्टेट था. पॉइंट क्या है उन एरियाज का? नाउ लेट्स गेट दिस डन विद एंड सी द पॉइंट ऑफ दैट कोचिन स्टेट एंड द त्रवणकोर स्टेट. ठीक है. अब क्या होता है, एक साइड है त्रवणकोर. ठीक है. जस्ट गेट अ लिटिल बिट आइडिया.
त्रावणकोर और डच के बीच में एक डील होती है, एंड त्रावणकोर स्टेट बाय सम फ्यू एरियाज। ठीक है, एरियाज कौन से, दैट इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नाउ। कुछ एरियाज को बाय करता है डच से। ठीक है, कौन बाय करता है, त्रावणकोर स्टेट। लेकिन ये जो एरियाज होते हैं ये कहाँ पर हैं, ये लोकेटेड कहाँ पर है, दे आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कोचिन। दे आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कोचिन। गॉट इट। तो त्रावणकोर स्टेट डच पावर से कुछ एरियाज को बाय करता है। दोज एरियाज आर लोकेटेड इन द कोचिन स्टेट, एंड टीपू सुल्तान हैड द आइडिया दैट कोचिन स्टेट was under the control of Mysore. So now the question rises कि how can Travancore buy something from the Dutch, ठीक है, that from that area which belongs to Mysore. बेसिकली वो उसके फ्यूडेटरी की तरह काम कर रहा था। ठीक है, तो यहां पर कौन है, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को लगता है कि यार मेरे जो सॉवरेन राइट्स हैं, मेरी जो कंट्री, मेरे जो किंगडम है उसके सॉवरेन राइट्स हैं, कहीं ना कहीं इस बाय एंड सेल से वो ब्रेक डाउन हुए। दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग। गॉट इट। सो ये वाला इशू आ जाता है। अब नाउ मैसूर और टीपू सुल्तान इज सेइंग टू द त्रावणकोर स्टेट दैट यू हैव वायलेटेड आवर सोवरेन राइट्स एंड वी वांट आवर सोवरेन राइट्स टू बी, उनको बिल्कुल वापस से वैसा कर दो, यू कैनॉट डू दिस पर्टिकुलर डील। एंड ब्रिटिश दे सो दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, एंड हु विल दे साइड विद, दे साइडेड, किसकी साइड ली उन्होंने, त्रावणकोर स्टेट की। एंड दिस इज द केस फॉर द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। पहले वाले का चेंजिंग अलायंसेस था, सेकेंड वाले का माहे और ट्रीटी ऑफ मद्रास का ब्रेकडाउन था, थर्ड वाले का त्रावणकोर स्टेट का कुछ इशू था, बाइंग और सब लैंड्स। ठीक है, 1792-92 टीपू त्रावणकोर इशू ओवर द कोचिन टेरिटरीज इन द 1790s। टीपू वर्सेस त्रावणकोर, बट त्रावणकोर इज साइडेड बाय इंग्लिश। पहले जनरल मीडोज होते हैं, बाद में कॉर्नवालिस आ जाते हैं एज अ कमांडर। एंड फाइनली द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापत्तम इज साइन इन 1792। टीपू सुल्तान लूजेस दिस पर्टिकुलर वॉर। ठीक है, वो इस पर्टिकुलर वॉर को हार जाते हैं 1792 को। नाउ द ब्रिटिशर्स वर हेल्ड बाय द मराठास, द ब्रिटिशर्स वर हेल्ड बाय द निजाम एज वेल। ठीक है, उन्होंने भी हेल्प की थी थर्ड में। फर्स्ट मैसूर जीत गया था, सेकंड इट वाज काइंड ऑफ अ इनकॉन्क्लूसिव, वापस से चीजें सेम हो गई थी, बट थर्ड वाले में मैसूर लूजेस द बैटल एंड देयर इज श्रीरंगापट्टनम की पट्टम की 1792 में ट्रीटी साइन होती है। तो वी हैव द मद्रास ट्रीटी, वी हैव द मैंगलोर ट्रीटी, वी हैव द श्रीरंगापत्तम ट्रीटी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई, तीन ट्रीटीज होगी, तीन वॉर्स हो गए, 67 to 69, after that 80 to 84, very good, then 90 to 92, so this is the war. Got it। अब देखो, अब उसके बाद होता है ये जो श्रीरंगापत्तम की जो ट्रीटी साइन हुई है, दिस वॉज इन 1792। अब एक बात याद रखना, यही ट्रीटी बाद में जाके व्हाट इट विल क्रिएट फॉर द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। So what happened in 1792? The question is this: what was the terms of this treaty? Now those who have read the terms, pause the video and think of the terms. What were the terms? And those of you don't remember it, let us try to learn them. सबसे पहले तो 1792 में ट्रीटी साइन हुई थी श्रीरंगापट्टम की। Got it? Number 1, half of the Mysore territories were given to the victors. East India Company, Marathas, the Nizams, they all became powerful because Tipu Sultan lost the war. Okay. बाड़मल, दिंदुगुल, जहां पर हैदर अली ने फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी तमिलनाडु के एरियाज में, मालाबार वेंट टू द EIC। तो बारमहल, दिंदुगुल और जो मालाबार की जो टेरिटरीज थी वो किसके पास गई, ईस्ट इंडिया कंपनीज के पास। मराठास को क्या मिला इस पर्टिकुलर से, द रीजन्स अराउंड द तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। तो तुंगभद्रा के आसपास का जो एरिया है वो किसको मिला, मराठास को।
निजाम को क्या मिला इस पर्टिकुलर वॉर में हेल्प करके? व्हाट डिड निजाम गेट आउट ऑफ दिस? निजाम गोट कृष्णा टू पेन्नार, कृष्णा रिवर से पेन्नार तक का जो एरिया है उसमें से मेजर पोर्शन किसको मिला? निजाम को। एंड देयर वर अ वॉर डैमेज ऑफ 3 करोड़। प्लीज रिमेंबर दिस, वॉर डैमेज ऑफ 3 करोड़। 1792, 3 crores is to be paid by Mysore to the East India Company and others. Can you think of the density of this particular thing? ठीक है, तो ये हमारे लिए ट्रीटी इसलिए इंपॉर्टेंट है 1792 की। नाउ हाफ ऑफ द अमाउंट वाज टू बी पेड इमीडिएटली 1.5 CR, एंड फॉर द हाफ अमाउंट सिक्योरिटी के तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? दे टेक द 2 sons of टीपू सुल्तान एज सिक्योरिटी की व्हेन यू विल गिव द रिमेनिंग अमाउंट ना यू कैन टेक योर सन्स बैक। ठीक है, बट सी द पावर दैट टीपू सुल्तान हेल्ड। ही कंप्लीटेड ऑल what was required of treaty of श्रृंगापट्टनम। पैसे भी दिए, टेरिटरीज भी दी। ही स्टार्टेड बिल्डिंग हिमसेल्फ। ठीक है, वो अगेन ही वॉज थिंकिंग ऑफ गेटिंग बैक एवरीथिंग दैट ही हैड लॉस्ट। दिस इज द पावर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, जैसे जर्मनी के बाद साथ हुआ था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हाउ दे गॉट दे थॉट ऑफ गेटिंग एवरीथिंग बैक, दिस इज व्हाट टीपू सुल्तान इज डूइंग। ठीक है, 1792 के बाद वो अपने आप को वापस से बिल्डअप करना शुरू करते हैं थ्रू वेरियस हेल्प्स। ठीक है, ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टनम के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो पूरे करते हैं। ही गेट्स हिज सन बैक, ही पेज द ऑल वॉर डैमेजेस एंड एवरीथिंग, एंड दीज आर द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी। प्लीज रिमेंबर दीज टर्म्स। ठीक है, बारामहल, दिंदीगुल, मालाबार ईस्ट इंडिया कंपनी, तुंगभद्रा का रीजन गया मराठास के पास, कृष्णा टू पेन्नार एरिया गया निजाम के पास, एंड द वॉर डैमेज ऑफ 3 करोड़। ठीक है, दीज आर द मेजर पॉइंटर्स ऑफ दिस ट्रीटी ऑफ 1792, द ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टनम। रिमेंबर, थोड़ी देर के बाद हमें एक्टिव रिकॉल करना है तो याद रखना। ठीक है, नाउ कम्स द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। दिस वॉज द लास्ट वन। ठीक है, उससे पहले हम स्टार्टिंग वाली एक बार फिर से देख लेते हैं। 1767 टू 1769। सेकेंड वाला अब तुम खुद बता दो। सेकेंड वाला वॉर हुआ था 1780, yes, to 1784, very good. The third one, it was in 1790 to 1792. ठीक है, इश्यूज याद है इनमें से? त्रावणकोर और टीपू का कौन से में इशू था? इट वॉज द थर्ड वन। इसकी ट्रीटी कौन सी थी? व्हाट वॉज द ट्रीटी? मद्रास, वेरी गुड। इनकी ट्रीटी कौन सी थी? इसकी सेकेंड वाले की ट्रीटी कौन सी थी? कैन यू थिंक ऑफ द ट्रीटी? It was Mangalore. And third वाले की treaty, the famous treaty, it was Sringapattam. This was the treaty. ठीक है, सो अब हम बात करेंगे फोर्थ एंग्लो। अब तो तुम ये सोच सकते हो ना, श्रृंगापट्टम की जो ट्रीटी हुई दैट वाज सो डिजास्ट्रस फॉर मैसूर दैट दे हैव टू फाइट बैक। ठीक है, एंड ब्रिटिश नीडेड वन सिंगल रीजन टू कैप्चर मैसूर दिस टाइम, बिकॉज इन 1799 Lord Wellesley and his system of subsidiary alliance came to India as Governor General. ठीक है, तो अब वो ये चाहते हैं कि जो मैसूर है वो छोटी सी गलती करे और हम इस एरिया को कैप्चर करें। दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग। गॉट इट? ओके, let us move and see the fourth Anglo-Mysore War. If you remember it, pause it and think of the pointers. और सिर्फ pointers में सोचना, don't go into the depth. ISMR लिख लोगे तुम एग्जाम के अंदर, मीन्स में अगर लिखने की भी ज़रूरत हुई तो आप लिख लोगे ISMR. You need to remember the facts and data. That is what the requirement of this exam is. कॉन्सेप्ट में मत खेलते रहो, डेटा भी याद करो. Can you see the dates? It is in 1799 only. From April to May. So it was a very short-lived war, the fourth Anglo-Mysore War. बाकी तो 4 years के लिए भी हुए थे, right? The Woodyers minor sir. ठीक है, एक तो ये केस था कि वुडियर जो डायनेस्टी थी उसके माइनर सन को टीपू सुल्तान ने बोल दिया, अब किंग माइनर सन नहीं बनेगा, आई एम द सुल्तान एंड आई विल टेक केयर ऑफ मैसूर माई सेल्फ. ठीक है, तो एक तो ये इशू बन गया कि वो उनके सन को अब जो राजगद्दी है उस पर बैठने ही नहीं दे रहे. दैट इज वन थिंग. श्रृंगापट्टनम की जो ट्रीटी से ह्यूमिलिएशन का जो इशू हुआ था वो इस वॉर का. तो कैन यू सी हाउ आई हैव रिटन द कोज ऑफ द वॉर इन जस्ट सिंगल लाइन.
इतना ही याद रखना है, दैट इज ओनली व्हाट यू नीड। हो तुम्हें क्या लगता है यू हैव टू राइट एसेज ऑन दिस? नो, 150 वर्ड्स, 250 वर्ड्स, दैट्स इट। 1798 में वेलेस्ली comes as the governor general after John Shore. So John Shore, he was a like average kind of governor general. He did not do much. उसके बाद वेलेस्ली जो आते हैं ना 1798 में, तो वो अपना सब्सिडी अलायंस का सिस्टम लेकर आते हैं। दैट इज वेरी क्रूशियल। डिफीटेड बाय स्टुअर्ट एंड देन हैरिस, तो टीपू सुल्तान लूजेज द वॉर मल्टीपल टाइम्स, पहले स्टुअर्ट से, देन बाय हैरिस, दीज आर मिलिट्री कमांडर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ऑफकोर्स देर आर मराठास एंड द निजाम एंड टीपू सुल्तान इज अलोन अगेन। ठीक है, कैन यू सी द इंडियन princely states and the Indian powers helping the East India Company defeating one of their own? So this is what was happening in India. The East India Company took benefit of the divide and rule policy that was there for always. हमेशा से उनकी यही पॉलिसी थी। ठीक है, so these are the pointers for the fourth Anglo-Mysore War. Pause it, think of the 4 years, 4 Anglo-Mysore War, think of the 4 treaties. Will any treaty be signed after 4th Anglo-Mysore War? Why? Because Tipu Sultan died, now who is to take care of Mysore? They will get back the kingdom. ठीक है, so no treaty. What happened to Mysore after Tipu Sultan? So he is going to die in 1799. What happened after that to the kingdom of Mysore? ठीक है, दिस इज टू बी सीन। ये हमारा पॉइंटर, हमारे दिमाग को एक स्टिमुलस मिला। इफ आई आस्क यू व्हाट हैपन टू मैसूर आफ्टर टीपू सुल्तान, गिव मी 3 to 4 पॉइंटर्स रिगार्डिंग इट। तो व्हाट यू विल कम अप विद? यू विल कम अप विद कि भाई जो वुद्य डायनेस्टी था, उनके किंग थे कृष्ण राजा द थर्ड। ठीक है, ही कंटिन्यूड एंड मैसूर केम अंडर द सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम याद है कि ब्रिटिशर्स अपनी एक आर्मी आपके किंगडम में प्लेस करेंगे, उस आर्मी के जितने भी रिक्वायरमेंट्स होगी वो किंग करेगा। फॉरेन रिलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट विल बी टेकन केयर ऑफ। वो किसकी परमिशन के थ्रू होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू होगा। आपके यहाँ पर एक ब्रिटिश रेजिडेंट, परमानेंट ब्रिटिश रेजिडेंट आपके कोर्ट में होगा, ताकि आप जो भी काम करें उसके थ्रू करें। इंटरनल अफेयर्स में ईस्ट इंडिया कंपनी आपको इंटरफेयर नहीं करेगी, बट आप किसी भी यूरोपियन को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। आई हैव गिवन यू ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस वाज अ सिस्टम बाय लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, एंड जिन जिन स्टेट्स ने इसको साइन करा, ठीक है, बी इट हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद ने इसको साइन करा, देन मैसूर केम। ठीक है, तो ऐसे करके देयर वर नंबर ऑफ स्टेट्स। तो हम वो सब्सिडरी लाइन्स वाले में बात करेंगे। अभी के लिए बस हम ये याद रखेंगे दैट मैसूर साइंड इट, हैदराबाद उससे पहले ही कर चुका है साइन। ठीक है, इंग्लिश टुक कनार, वायनाड, कोयम्बटोर, द्वारपुरम एंड श्रृंगापट्टम। दीज वर द एरियाज विच वर टेकन बाय व्हाट? द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब उनका एरिया जो है वो एक्सपैंड हो गया। 1831 नाउ Mysore was being ruled by the Wudiyar dynasty after Tipu Sultan, because उन्होंने तो 1792 के बाद उन्होंने उनके सन को बनने से मना कर दिया था, दैट आई एम द सुल्तान। व्हेन टीपू सुल्तान डाइड, Wudiyar dynasty came back, and finally in 1831 कौन गवर्नर जनरल थे इस टाइम पे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ही टुक ऑफ the control of Mysore on the premise of misgovernance, that the Wudiyar dynasty is not properly governing the Mysore area, so we are basically taking it. ठीक है, बट उन्होंने तो वो ले लिया था, बट बाद में 1881 में रिपन रिस्टोर्ड द किंगडम टू इट्स रूलर, एंड फाइनली जो मैसूर है, ठीक है, इट वो रिमेन्ड एज अ प्रिंसली स्टेट। ठीक है, till India got its independence from the Britishers. It remained as a princely state. So now we know what happened after Tipu Sultan. Number one thing, they signed a subsidiary alliance. They signed a subsidiary alliance. That was number one thing. Second, they took control of Mysore in 1831. Lord William Bentinck under misgovernance pretext. 1881, Lord Ripon gives back the kingdom to the Wudiyar dynasty. And after that,
It runs as a princely state, ठीक है, till India gets its independence. So this is the complete timeline from 1399 when Mysore was created as a vassal of the Vijayanagara Empire. ठीक है, 1612 when it got independence after the decline of Vijayanagara Empire and the Battle of Talikota. 1761 when Hyder Ali took over. 1782 the second Anglo-Mysore war when Tipu Sultan, ठीक है, came forward. 1792 the Treaty of Sringapattam. And finally the decline of Mysore under Tipu Sultanate. सल्तनत का हमने देखा था ना 1761 to 1799. ठीक है, so this was the thing. Okay, so this is the completely after Mysore after Tipu Sultan. Now if you remember all the pointers, so now let us look at the particular exercises which you have been waiting for, which is the active recall exercises. If you remember the things from this one, then you are the one. ठीक है, क्विकली देखेंगे, इतनी ज़्यादा पॉइंट्स हैं भी नहीं. ठीक है, नंबर 1, डू यू रिमेंबर? ओके, आई विल यूज अ हाईलाइटर. डू यू रिमेंबर द बैटल ऑफ तालिकोट? Date. Think. Date. The year between Vijayanagara Empire and the Delhi Sultanate. The five Delhi, I'm saying Delhi Sultanate, I'm sorry. It was the Deccan Sultanate, right? What were the 5 Deccan Sultanates? टॉप पे, उसके नीचे अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, बेरार, गोलकोंडा. वेरी गुड. वोदिया डायनेस्टी. थिंक अबाउट इट. रूलर, डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द रूलर. ठीक है, वो अब अपना काम कर रहे हैं 1612 वाले एरिया में. हु आर द 2 पीपल हु आर मोर इन्फ्लुएंशियल इन द कोर्ट? कौन है? 2 वर्ड्स क्या हैं? सर्वाधिकारी एंड दलवाई. तो उसी के बारे में सोचो. हु वाज द दलवाई? कमांडर इन चीफ. सर्वाधिकारी प्राइम मिनिस्टर. माइसोर अंडर हैदर अली. फाइट करते हैं. पोलीगर्स का कुछ याद है? थिंक अबाउट इट. माइसोर अंडर हैदर अली कि क्या क्या उन्होंने करा. कोई आर्म्स फैक्ट्री भी एस्टेब्लिश हुई थी. वेरी गुड. पोलीगर्स को कंट्रोल करा था. नाइस. तो ही इज टेकिंग केयर ऑफ माइसोर इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड. ठीक है, आई होप यू रिमेंबर दिस. ठीक है, धीरे धीरे वी विल रीच द 100%. You have actively recalled 33% of the task if you are doing it genuinely, honestly. ठीक है. Who are the polygars? Think about the polygars. Who are these local landlords? What were the services that they were providing? They were under the Vijayanagara kingdom. Yes. Empire. Yes. EIC takes care of Mysore in which year? 1799. After which polygars revolt. What was the year of the revolt? 1799 to 1805. वेरी गुड. ठीक है, तो वी हैव द पॉलीगर्स. EIC ट्रीटी विद द निज़ाम. निज़ाम के साथ किस चीज़ के लिए ट्रीटी साइन होती है? 1766 में फॉर द नॉर्दर्न सरकार्स. बदले में EIC इज गोइंग टू बी प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द निज़ाम. गुड. फर्स्ट एंग्लो माइसोर वॉर बहुत बार कर लिया यार अब तो. ये ईयर, the treaty, the issues. That was only thing required. Second Anglo-Mysore War. Year, the treaty. First half under Hyder Ali. Second half under Tipu Sultan. Treaty हो गया, Treaty of Bangalore. Good. These are the major points. ठीक है, you don't have to get into all those की माहे भी है, ये भी है, वो सब चीज़ें. Don't go into that. थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर. यहाँ का रीजन इंपॉर्टेंट है. द फाइट ओवर द टीपू सुल्तान एंड त्रावणकोर स्टेट ओवर सम ऑफ द एरियाज दैट दे वर बाइंग एंड एवरीथिंग. ठीक है, ऑफ द कोचिन स्टेट फाइट होती है. EIC के साथ साथ निज़ाम, मराठा सब उस पर फाइट करते हैं माइसोर के टीपू सुल्तान के साथ. ट्रीटी कौन सी साइन होती है? श्रृंगापट्टनम. ईयर कौन सा था? 1792. ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टनम. आते हैं उस पर भी. अच्छा, हमने एक एक्स्ट्रा कर दिया ना. Don't worry, you have crossed 66%. थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर तो हमने देख लिया. ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टनम 1792. ठीक है,
3 करोड़ की वॉर इंडेमनिटी थी। कुछ एरियाज EIC के पास चले गए थे। ठीक है, कौन कौन से? BMD, याद करो BMD क्या था। कुछ एरियाज निज़ाम के पास चले गए थे। कौन किन दो रिवर्स के बीच का एरिया उनके पास गया था? कृष्णा एंड पेन्नार। विच वॉज द रीजन दैट द मराठास गोट? द रीजन अराउंड विच रिवर? तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, तो दीज वर गोइंग ऑन। फोर्थ एंग्लो माइसोर वॉर, ह्यूमिलेशन हुई थी ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टम की। ठीक है, दैट वाज द मेजर इशू दैट इट वाज गोइंग थ्रू। नाउ कब हुआ था? 1799 में, अप्रैल टू मई वाले पार्ट में टीपू सुल्तान डाइज। ठीक है, नो ट्रीटी। माइसोर आफ्टर टीपू सुल्तान, व्हाट हैपन टू माइसोर? सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस आता है इसके अंदर 1831 में। व्हाट हैपन्स? हु इज द गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या करते हैं वो? मिस गवर्नेंस के प्रिटेक्स्ट पे उसको कंट्रोल ले लेते मैसूर का। हु गिव्स द कंट्रोल बैक? 1881. Who gives it back? Lord Ripon. And finally it comes up as a princely state and up to the independence. So my dear friends, this is the successful completion of the active recall, and you have to be proud of your own self. ठीक है, so you have completed this topic and you have done it in so much detail, doing the revision at the same time. Why we are doing these big lectures? आप टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो, आप रिवीजन कर रहे हो, आप एक्टिव रिकॉल कर रहे हो, एंड यू हैव द फ्लैश कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू, द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम, इजंट इट? So with this, I'll take a leave. I'll see you in the next one. Keep learning, be proud of yourself, keep revising. Revising is the key. ठीक है, revising is the key, and that is what you have to do. I hope to see you in the list and you keep working on it. See you. Take care.